नमस्कार सत श्री अकाल जी, मैं रिकी डोगरा एक बार फिर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਡਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਡਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही बच्चों को बोलना चाहूँगी कि अगर तो आपका केस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है, आप पास के कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हैं, मुझे समझ आती है बात। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके केस में थोड़ा सा भी फ्लॉ है, आपके केस में थोड़ा सा भी आपके मार्क्स कम है या आपके रिफ्यूज़ल्स हैं पहले से, या फिर रिफ्यूज़ल नहीं भी है, फ्रेश केस है लेकिन आपके मार्क्स कम है, आपका गैप हो गया है, तो आप उस टाइम पर कोई एक्सपर्ट ही देखिए जो वैसे केसेस निकाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंसल्टेंट हर केस निकाल सकता है, हर एक की अपनी एक एक्सपर्टीज़ है। कोई गैप में अच्छा है, कोई रिफ्यूज़ल में अच्छा है, कोई फ्रेश केसेस में अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही करो। क्योंकि आपने जब फाइल डालनी है, अगर आपका वीज़ा इस करके रिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि मैं पास के गया था, कभी कभी कोई रिश्तेदारी में जान पहचान का होता है तो कहते हैं हमने तो रिश्तेदार से ही फाइल लगा ली थी। पहले आप ये तो देखो कि उन्होंने कितने वीज़ाज लगाए हैं, क्या उनके पिछला रिकॉर्ड देखो, आप उनके देखो कितने वीज़े लगे हैं, उनका फेसबुक पेज चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो। आज की डेट में तो सारे बच्चे सोशल मीडिया पे होते ही हैं, सोशल मीडिया से बच्चों को सब पता चल जाता है, तो अपने पेरेंट्स को भी उस तरीके से गाइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने रिश्तेदारी में ही वीज़ा लगाना है, क्योंकि कनाडा अगर पहुँचना है तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस तो चाहिए ही है। बिल्कुल। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਹੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ +2 ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੁਆਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ +2 ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ +2 ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਦੂਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਤੀਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ 3 ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 70-80% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਬੈਂਡ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इन बच्चों को देखो, 2 केस हैं, एक तो है बच्चा जो 12वीं वाला और एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन की है। जो बच्चा ग्रेजुएशन वाला है वो आइल्स करने को अगर टाइम ले रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका 1-1.5 साल का गैप हो गया, चल जाएगा। लेकिन जो 12वीं का बच्चा है जिसने चाहे 12वीं के पेपर भी दिए हैं, चाहे वो 12वीं के पेपर देने के बाद आइल्स की तैयारी कर रहा है, बच्चे को अपना लेवल पता होता है, उसको पता है कि मुझे 3-4 महीने 6 महीने आइल्स में लग ही जाएंगे। मेरी सलाह उन सब बच्चों को ये है कि आपको नहीं पता होता कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, केस ख़राब है तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा केस होता है, 70-80% नंबर होते हैं तो भी बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। हर बच्चे को, जो बच्चा 12वीं कर रहा है, बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को साथ साथ इंडिया में ग्रेजुएशन में एडमिशन ज़रूर कराओ। अगर आपका बच्चा आइल्स की पढ़ाई भी कर रहा है तो आइल्स की पहले तो कोई पढ़ाई नहीं होती, आइल्स एक इंग्लिश का टेस्ट है, हाँ लैंग्वेज टेस्ट है। आइल्स आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है बस वो असेस करनी है। बच्चों ने आइल्स को पढ़ाई बना ली है, अगर आपने 6 महीने 8 महीने पढ़ाई आइल्स करने में लगाए हैं तो वो आपका गैप जस्टिफाई नहीं करता कि हम तो आइल्स कर रहे थे। आइल्स तो हम बचपन से ही, अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम तो उसको इंग्लिश में ही कंसिडर करेंगे। तो मेरे कहने में हम हर बच्चे को जो हमारे ऑफिस में आता है उसको सबसे पहली चीज़ हम 12वीं वाले को यही बोलते हैं कि आप अगर हमारे पास फाइल लगा रहे हो, आप कनाडा जाने के लिए 20-22 लाख रुपया खर्च कर रहे हो, है ना,
तो अगर आप इंडिया में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लोकल में भी एडमिशन ले लोगे, बीए में, बीकॉम में, बीएससी में, तो आपका कितना 10-20 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो आप साथ में एडमिशन ज़रूर लेके रखो, आप पढ़ाई मत छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही आप वो पढ़ाई छोड़ देते हो आपका गैप पड़ना शुरू हो जाता है। आपने 12वीं के बाद अपनी फाइल लगाई, आपने एडमिशन नहीं ली थी, 6 महीने आपके आइल्स में लग गए, उसके बाद आपने फाइल डाली, भगवान ना करे आपका रिफ्यूज़ल आ गया, तो आपका 1 साल का गैप हो गया। फाइल आपने रीअप्लाई करी, आपका फिर रिफ्यूज आ गया, या नहीं भी अगर रिफ्यूजल आया तो गैप बढ़ता जाएगा। अब आप रिफ्यूजल से बचने के चक्कर में अब आपका गैप हो गया, अब आपको ये भी टेंशन है कि हमने कनाडा तो जाना है, गैप भी भरना है, फिर आप लग जाते हो उस गैप को भरने के चक्कर में। कोई आपको कोई सलाह देता है, कोई आपको कोई सलाह देता है। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ पेज देख सकते हो, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल इंटरनेट इंडिया के बीच इन्ना सस्ता है। जे अगर तुसी रीलां देखने दे बीच अपना इंटरनेट जिहड़ा जे है यूज़ करते हो तो किते ना किते अपनी स्टडी के उपर फोकस करने लई या फिर कंट्री नूं उहदी किहड़ी-किहड़ी प्रोविंस तुसी जा सकते हो, ये चीज़ां भी देख लिया करो, क्योंकि इंटरनेट ते ऑनलाइन बहुत सारियां जिहड़ियां ऑप्शनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 12वीं के बच्चे का जब गैप बढ़ जाता है तो उसके पास कॉलेज की ऑप्शंस थोड़ी सी कम जरूर हो जाती हैं। अच्छा, एक और हाँ मैं तो ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਐ ਛੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ बेसिकली? ये जो तरीका है ये तो वैसे बिल्कुल ही गलत है। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन आपके पास यही है कि अगर आपने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, आप आइल्स कर रहे हो, आप साथ साथ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो। अगर आपका वीज़ा लग गया तो वो पढ़ाई आप छोड़ के चले जाना। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आपके पास एटलीस्ट कोई प्लान बी है। आपको पता है कि मैं इंडिया में पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, 12वीं के बाद वीज़ा नहीं लगा, ग्रेजुएशन के बाद लग जाएगा, कम से कम आपके कनाडा के दरवाजे तो नहीं बंद हुए। लेकिन जो बच्चे फेक सर्टिफिकेट, फेक डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, उन बच्चों को मेरी यही सलाह है कि आप थोड़ा देख के ये काम करो। आज की डेट में कनाडा वैसा नहीं रहा, इंक्वायरी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही है, हर बच्चे का हर डॉक्यूमेंट चेक होता है। हमारे पास फिर बाद में बच्चे आके बोलते हैं कि मैम हमारे को बैन लग गया, क्योंकि अगर आपका कोई फेक सर्टिफिकेट निकल गया तो सीधा आपको 5 साल का बैन लगेगा। और अगर एक बार 5 साल का बैन लग गया तो ये नहीं है कि 5 साल का बैन लग गया उसके बाद हम चले जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। बैन हटने के बाद भी आप रहोगे तो एक इनजेन्युइन स्टूडेंट ही। एम्बेसी की नज़रों में तो ये आ ही गया कि उन्होंने एक बार आपको बैन लगाया था। बिल्कुल। अगर आपका गैप है 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, हमारे 20 साल के गैप वाले का भी वीज़ा लगा। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, गैप नाम दी कोई चीज जितो लोग तुसी डरदे हो, इतना डरने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप एक बार जाके किसी कंसल्टेंट से तो मिलो जिसने गैप में किया है। आप जिसके पास जा रहे हो जो आपको बोल रहा है तो ये भाई ये सर्टिफिकेट लगा ले, या तुम ऐसे डिग्री बना लो, या ये कर लो, वो आपसे बिना वीज़ा लगाए आपसे पैसे तो कमा गया, आपको डिग्री बेच के या आपको डिप्लोमा बेच के या आपको कोई भी सर्टिफिकेट गाइड करके। और सबसे बड़ी बात है, चलो पैसे भी कमा गया, वीज़ा लगेगा, क्या हमें इस चीज़ की श्योरिटी है? और अगर वो फेक सर्टिफिकेट के चक्कर में आप फंस गए तो आपका फ्यूचर सारा का सारा खराब है। बिल्कुल बैन, कनाडा सीधा बैन ही करता है, 5 साल का बैन है। और अब तो वो सिर्फ 10 दिन का टाइम देते हैं। और सबसे बड़ी गल जे कनाडा पहुंच भी गए तो हुण तुसी देख लो ਜਿਹੜੇ 700-800 ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। क्योंकि वेरिफिकेशन जो है, अगर आप देखो
देखो वेरिफिकेशन 3 स्टेज में होती है। पहली बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं इंडिया में जब आपका वीजा लगता है, बिल्कुल, चलो आप यहाँ से निकल गए, आपका वीजा लग गया। दूसरी बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे जब आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, चलो फिर भी आपकी किस्मत अच्छी है, आप निकल गए। तीसरी बार आपने जब पीआर अप्लाई करनी है फिर भी होगा। ये सारे बच्चे तभी फंसे थे जब उन्होंने पीआर अप्लाई की थी। आप सोचो आपने 7-8 साल कनाडा में लगा लिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स फेक पकड़े गए और फिर आपके ऊपर बैन लग गया और आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपके पिंड में भी तो तब भी तो बेइज्जती है, तब भी तो आप बोलोगे अब हम पिंड के स्मूथ से जाएं। तो पहले ही इतना बड़ा पंगा, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मत पड़ो। ਵੱਡੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਪਿਓ ਅੱਛੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ मतलब ले लेता है, लेकिन वीज़ा आंदा है? बिल्कुल आता है। हमारे कितने बच्चों का आया है, हमारे पास तो 8, 9, 10 साल के गैप वाले बच्चे आम है। मैं मोस्टली देखता हूँ कि कई कंसल्टेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मना कर देते हैं। देखो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपका गैप है, पहले तो आप ये चिंता छोड़ दो कि मेरा वीज़ा नहीं लग सकता। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिलिए, आप एक्सपर्ट एडवाइस पे जाइए, वो आपको ज़रूर अच्छे से गाइड करेंगे। अगर किसी को कनाडा की फाइलिंग अच्छे से आती है तो वो आपको कोई भी उल्टी सीधी सलाह नहीं देंगे, आपका केस ज़रूर एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। कनाडा गैप का केसेस ले लेते हैं, वहाँ पे वीज़ा लगते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे देखो, अभी हमारा रिसेंटली 20 साल के बच्चे का वीज़ा आया है, क्लाइंट का वीज़ा आया है, और 20 उनके खुद के 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा। वो खुद स्टडी वीज़ा पे गए हैं। उन्होंने तो बोला हमें उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि उस केस में हमारे पास 100% श्योरिटी नहीं होती कि वीज़ा लगेगा, लेकिन चांसेस होंगे ने, चांसेस बहुत अच्छे चांसेस, और ट्राई करना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अगर आपका गैप है तो आप एक बार ट्राई तो करो। आपका नुकसान ही कितना है, 60-70 हज़ार लाख रुपए का नुकसान है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि अभी भी अगर आप यहाँ बैठे हो आप कुछ नहीं कर रहे, तो बेटर है अगर आपका गैप है आप अपना केस अप्लाई करो, आप अपना वीज़ा लगाओ, वीज़ा लगने के चांस है। प्रॉब्लम आती है 12वीं के बच्चों को, अगर उनका गैप बहुत ज़्यादा हो जाए। ग्रेजुएशन के बच्चे का तो हम 20 साल का गैप भी ले लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका गैप है आप हमारे ऑफिस आइए, आप हमारे जितने भी वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनसे बात कीजिए। जो भी हमारी ग्रेजुएशन है तो आप करो। अगर आपने 12वीं की है तो 12वीं में एक सर्टन लेवल तक का ही हम गैप लेते हैं। आज की डेट में हम 2016, 2015 वालों के तो केसेस कर रहे हैं। हाँ अगर आप ये बोलो आपने 2011 में 12वीं की थी, 2012 में 12वीं की थी, तो केस बहुत ही मुश्किल है। 2015-16 पास आउट भी हो 12वीं में, कुछ नहीं किया उसके बाद, तो भी आपके वीज़ा लगने के चांस हैं। लेकिन इस गैप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो आप लोग अगर समझदारी से काम करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कि साथ साथ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो। बच्चों का मन हो जाता है कि हमने नहीं करना, क्योंकि मेरा साथ वाला दोस्त भी कनाडा चला गया, दूसरे वाला ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो यूके चला गया, तो मैं पिंड में रह गया हूँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं कॉलेज जाऊँगा तो शायद मेरी बेइज्जती है कि मुझे कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है, मैं लोकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। कुछ नहीं है, आप अपने बारे में देखो, क्योंकि अगर कल को आपका वीज़ा नहीं लगा तो ज़्यादा बेइज्जती है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा सर्वाइव करना। तो कोशिश करो कि गैप ना हो पाए 12वीं के बाद, आप ग्रेजुएशन तो कर ही लो। बिल्कुल। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਫਾਈਲ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸ बढ़ जाते हैं, ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿੰਦਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ डिटेल ਨਾਲ समझाया जा सकता? फ़ोन पे समझाया जा सकता है, 15-20 मिनट में हम जितनी भी बात समझा सकते हैं हम कोशिश करेंगे, लेकिन
बच्चा अगर कभी ऑफिस फ़ोन पे आप समझ लीजिए, लेकिन अगर आपका केस ज़्यादा ही ख़राब है फिर तो मैं कहूँगी कि एक बार जाके आप विजिट ही करके आओ, क्योंकि जब आप किसी कंसल्टेंट से मिलते हो, आप चेयर पे आमने सामने बैठे होते हो, आपको उस ऑफिस के माहौल से, उसके बात करने के तरीके से, उस ऑफिस की जिसे हम बोलते हैं कि आपको थोड़ा पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना ही अच्छा ऑफिस है। और जब तक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦਾ YouTube ਜਾਂ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ? बिल्कुल, पीटी के साथ पहले भी चांसेस थे। तो मैं पूछा बेसिकली इस करके है क्योंकि कई बार होता है आइलेट्स जब करती होंगी किसी बच्चे ने 5.5 बैंड के ऊपर नहीं लै पाता, 2-3 अटैम्प्ट कर पाता, लेकिन उन्होंने लगता कि मैं अगर पीटी कर ला तो पीटी के ऊपर स्कोर जो ले लांगा मैं। तो वो बच्चे जोड़े हैं वो पीटी करना चाहते हैं, लेकिन कंसल्टेंट जोड़े हैं वो कह देंगे कि पीटी कैनेडा के विच एक्सेप्टेड नहीं है। हुण तुसीं उन्हां बच्चों नूं की कहोगे, बाकी एक्सेप्टेड हैगी है? पीटी देखो एक्सेप्टेड तो है, कभी भी बंद नहीं थी। अब ये कंसल्टेंट की चॉइस है कि वो पीटी पे केस करना चाहता है या नहीं, क्योंकि आज तक क्या था कि पीटी नॉन एसडीएस कैटेगरी में आती थी, और नॉन एसडीएस का थोड़ा रिफ्यूजल रेट थोड़ा सा हाई रहता है एज कम्पेयर टू एसडीएस। तो कंसल्टेंट अगर अपना नाम नहीं खराब करना चाहता तो वो मना कर देता था। हम भी मना करते थे किसी टाइम पे कि पीटी पे हम केस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारा इतना अच्छा नाम है, हर 10 में से 9 वीजे लग रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा नाम खराब हो, बच्चे का रिफ्यूजल आए, क्योंकि हमारे पास तो बच्चे इसीलिए आते हैं कि रिफ्यूजल ना हो, इनसे केस निकल जाएगा। अगर आप आज की डेट में कनाडा ने पीटी को एसडीएस कैटेगरी में डाल दिया, तो अगर आप पीटी कर रहे हो तो आप करो, लेकिन पीटी में भी आपका मिनिमम 60 स्कोर हो। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि 52 आ गए, 53 आ गए और आपने फाइल डाल दी, वीजा तो भी मुश्किल है, वीजा नहीं निकलेगा। 60 स्कोर तो आपको मिनिमम लेना ही लेना है। जैसे ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 60 ਦਾ ਸਕੋਰ मतलब 6 बैंड के आसपास, 6.5 के आसपास होता है। लेकिन पीटी में वो 60 ही मांगते हैं। पीटी में 60 से कम मतलब कि स्कोर कम है, 59 भी चल जाएगा, लेकिन 52, 53, 54 नहीं। ਜੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰसेज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ नहीं लेंदे, इदां तो नहीं? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आपको हर कॉलेज में हर कोर्स में एडमिशन मिल ही जाती है पीटी पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। पहले फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अब काफ़ी देर से पीटी एक्सेप्ट हो ही रही है हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, फॉर कोई भी कोर्स है, हर कोर्स में। और अब तो जब कनाडा ने ओपनली ही बोल दिया कि हम उसको एसडीएस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। इनफैक्ट अगर आपसे पीटी नहीं हो रहा, आप टॉफल कर लो, टॉफल की भी बहुत अच्छी स्कोरिंग है, टॉफल में भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और टॉफल पे पहले भी बहुत वीज़ाज लग रहे थे नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी। तो अगर आपसे आइल्स नहीं हो पा रहा तो पीटी या टॉफल में से आप कुछ भी कर सकते हो। टॉफल में भी अगर अच्छा स्कोर है तो वीज़ा लगने के चांस अच्छे हैं। बिल्कुल। हुण मैं बेसिकली हुण तुहाडे तो पुछना ये गल चाहुंदा है कि देखो कई बार हुंदा है, हुण जिवें वीज़ा विनर का नाम हैगा, ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ 5-6 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਥਰੂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ? पिछले साल तक तो वीज़ा के चांसेस काफ़ी कम थे, क्योंकि कोविड के बाद जब इन्होंने नया नया ओपन किया था तो काफ़ी रिफ्यूज़ल रेट था। आज की डेट में पेरेंट्स के वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छी जो है सक्सेस रेट चल रहा है, काफ़ी अच्छे वीज़ाज आ रहे हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, किसी भी पेरेंट ने वीज़ा लगाना है कि हमने कनाडा अपने बच्चों के पास जाना है, तो वो आराम से वीज़ा लगा सकते हैं अगर उनके बच्चों को गए हुए 2-3 साल हो गए हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा भी 5-6 महीने पहले ही गया है, फिर मैं बोलूँगी कि आप थोड़ी देर रुक सकते हो, लेकिन अगर कॉन्वोकेशन आने वाली है बच्चे की तो आप आराम से अपना अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा
वीज़ा लगने के चांस हैं। अगर कॉन्वोकेशन हो गई है, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्वोकेशन मिस हो गई है तो अब आप जा ही नहीं सकते, उसके बाद भी आप जा सकते हो। आपको तब भी कोई कारण ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्नली पेरेंट्स आके हमें ये बोलते हैं कि मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, मैंने तो जाना है, या फिर उसने ये किया मैंने तो जाना है। अगर आपने अपने बच्चे से मिलने जाना है तो आपको किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को वहाँ गए हुए 2-3 साल हो गए हैं, आप बिना किसी कारण के भी फाइल अप्लाई कर सकते हो। आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए अपने बच्चे से कि मैं माँ बाप को बुलाना चाहता हूँ, और आप अपना केस अप्लाई करो। वीज़ा लगने के काफ़ी अच्छे चांस है, और अभी स्मूथ चल रहा है, अभी काफ़ी अच्छे ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਲੋਅਪ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮੋस्ट ਜਿਹੜਾ एग्रीकल्चर ਨਾਲ रिलेटेड ने जी। अगर आपका गैप है, इसका सिंपल जवाब यही है, अगर आपका गैप है 12th के बाद है या ग्रेजुएशन के बाद है, आप एक बार किसी की एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लो, और कोई भी फेक सर्टिफिकेट फेक डॉक्यूमेंट मत बनाओ, बिल्कुल भी मत बनाओ, क्योंकि वो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। अभी फंसाएगा, 4 साल बाद फंसाएगा, या 10 साल बाद फंसाएगा, कब फंसाएगा, लेकिन फंसने के चांस हैं। आप ये मत देखो कि मेरे मामा चाचा ताया के बेटे का वीज़ा लगा था, उसने तो इस टाइम पे ये सर्टिफिकेट बनाया था, उसका उस टाइम पे वीज़ा निकल गया। अगर आप इंडिया में कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी वीज़ा लग सकता है। आपका बस हमें गैप जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम 4 सर्टिफिकेट बना के बीच में डाल देंगे। जस्टिफिकेशन के बड़े तरीके होते हैं, आपकी SOP जाती है, आपकी एक्सप्लेनेशन लेटर्स जाती हैं, बहुत कुछ जाता है फाइल में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है आपका केस प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फेक सर्टिफिकेट से थोड़ा सा दूर रहो। अगर तुसी ये शो मिस कर दिता है या हुणे देखना शुरू करता सीगा, जानकारी तुहानूं अद्धी अधूरी मिली है, तो इहदा नंबर जिहड़ा जिहा फ्लैश हो रहा, तुसी ये नंबर की फोटो खिंच लो या नोट करके रख लो। तुसी इस शो तो बाद भी इन्हां नूं कॉल कर सकते हो, और जिहड़ा जिहा अगर फिर भी रह गया कोई देखना, तुहाडे तो कोई मिस जिहड़ा जिहा हो गया कोई पार्ट, तां तुसी YouTube या Facebook ते जाके ये शो इन्हां दा देख सकते हो। वीज़ा विनर दा इन्हां दा Facebook YouTube जिहड़ा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। हुण सानूं दो इजाजत, ते तुसी उन्हां परिवारां दे नाल मिलो जिन्हां दे लेटेस्ट वीज़ा आए ने, और उन्हां दे किदां दे एक्सपीरियंस रहे, तुसी वो देखो। सानूं दो इजाजत, धन्यवाद। मेरा नाम अर्शदीप कौर है तो मैं मोगा तो बिलोंग करती हाँ। मैं अपनी एजुकेशन 2018 कंप्लीट की तो आफ्टर दैट आई गॉट 3 रिफ्यूजल्स, बट विद द हेल्प ऑफ वीज़ा विनर टीम आई गॉट माई वीज़ा, एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बिकॉज आई रिसीव माई वीज़ा। So I suggest all of you to visit Visa Winner team and get your visas. Hi, my name is Jagrup Kaur. I am from Amritsar. I am 2021 pass out. I got my Canada study visa after 3 refusals. I highly recommend Visa Winner Consultant to everyone. Their service is outstanding. Thank you so much, Visa Winner Consultant. Hello everyone, my name is Gurpreet Singh. I said from Jammu. I studied from Shiksha Niketan High Secondary School in 2020. Firstly, I got refusal from Canada and then from Australia also. Then someone suggested me to come Visa Winner Consultant and apply from here. Then I came here and applied for Canada study visa, and then after 3 refusals, I got my Canada study visa. I thanks to Visa Winner Consultants and their team for getting my Canada study visa, and I suggest to all my friends and nears and dears to come here and complete your dreams to study abroad with Visa Winner Consultants. Thank you so much, Visa Winner Consultants. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਕਨ ਰਾਓ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ 2020 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰਸ ਤੋਂ ਲਵਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ। Good evening, my name is Mrish. I am from Crawley. I am 18 pass out, and today I am very happy because I got my visa after three refusal, and I am very thankful to Visa Winner Consultant who helps me to get my visa.
So I will recommend to everyone who wants to enjoy your dream to go to study abroad. Please visit here and enjoy your dream. Thank you. My name is Gurpreet Singh and I am from Singapore. I previously refused 5 times from Canada. Recently, I received my visa stamp with the help of Visa Winner consultants. I recommend everyone to visit once in Visa Winner consultants office. Thank you.